Hello everyone. I hope आप लोग अच्छे हो and you people are practicing problems, learning concept. For now we will be solving this question and this one is one very beautiful question I would say. So आप सबको question को खुद से पढ़ना चाहिए और खुद से जरूर try करना चाहिए because this is really going to going to be so beautiful for you to try this one. बहुत मजा आएगा मैं सच्ची बता रही हूँ. So आप लोग जरूर इसको try करना. Now, let us read the question. A conducting rod of mass m and length L can oscillate like a pendulum in a vertical plane about point O. So, this is the rod and this can uh, oscillate like a pendulum in a vertical plane. So, we are already familiar with such system, है ना? Pendulum के बारे में हमने काफी पढ़ा है. So, एक string से certain mass is hanging. If we shift it by certain small angle and then we release it, then what it will do? It will perform SHM. It will oscillate like this. Then अगर small displacement हुआ, then it will perform SHM, right? So this is the case, but यहाँ पे हमारे पास rod है. अगर रॉड है एल लेंथ का, इसको भी हम पेंडुलम की तरह ट्रीट कर सकते हैं बाई सिंपली रिप्लेसिंग इट विद अ थ्रेड ऑफ लेंथ एल बाई टू. अगर ये लेंथ ऑफ रॉड एल है, then we can replace it with a thread length of L by 2 with pendulum hanging here. So simply इसका center of mass यहाँ है. So we can we can imagine this rod oscillation like oscillation of this simple pendulum which is hanging from a thread of length L by 2. The lower end of rod glides smoothly on a circular conducting arc of radius L. So generally क्या होता है, ये तुम्हारा हवा में glide कर रहा होता है. And हवा, that air doesn't provide any resistive force. डन है. यहाँ पे surface smooth है. So this is also not providing any friction. So it is not adding any difference, I would say. Done it just like this pendulum would glide in the air. Similarly, it is gliding on the surface. There is no difference. Okay. The circular arc is connected to point O of the rod through a capacitor of capacitance C. And this circular portion is connected with O with the help of this conducting rod where capacitor is there in between. Okay, so capacitor ke help se this is connected to point O. Now what is said, the entire device is kept in a uniform horizontal magnetic field B directed into the plane of figure. So definitely this figure is in vertical plane. Horizontal magnetic field will be perpendicular to the plane and that is inward here. Disregard resistance of any component. Resistance है नहीं, okay? The rod is deflected through a small angle theta naught from the vertical position and released at time t equal to 0. So what we are doing, we are taking rod to an angle of theta naught and then we are releasing it. Then what we have to do, write the deflection angle theta of the rod as a function of time t. So theta as a function of time t हमें लिखना है. और बी में हमसे ये पूछा जा रहा कि अगर हमने कैपेसिटर को रेजिस्टर से रिप्लेस कर दिया, then what sort of motion will you expect? Okay, just give qualitative description. Simply we have to conceptually explain that. सबसे पहले तो देखो यहाँ पे होगा क्या. First we have to write theta as a function of time t. अब आप देखो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है. म्यू क्या है? जीरो. रेजिस्टेंस क्या है? जीरो. इसका क्या मतलब है? आपने पढ़ा होगा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में पावर कंजम्पशन क्या होता है? जीरो. इसका पावर फैक्टर क्या होता है? 90 डिग्री. सो कॉस फाइव इज 90 डिग्री, कॉस फाइव इज जीरो. डन है. सो दैट इज जीरो. पावर क्या होता है? फॉर्मूला वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव. So here phi is 90 degree, cos phi is 0, right? So power consumption 0. Purely inductive circuit भी होता है तब तुम्हारा power consumption क्या होता है? यहाँ भी 0 होता है ना? और जहां पे तुम्हारा रेजिस्टर आ गया वहां पे पावर कंजम्पशन होगा क्योंकि रेजिस्टर्स के अलोंग जो एनर्जी कंज्यूम होता है इन टी टाइम दैट इज रिटन एज आई स्क्वायर आर टी विच गेट्स रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट सॉर्ट ऑफ. डन है. सो रजिस्टर क्या करता है? एनर्जी को खाता है. वो एनर्जी कंज्यूम कर जाता है जिस तरह से फ्रिक्शन कंज्यूम करता है. लेकिन कैपेसिटर क्या करेगा? इट विल टेक एनर्जी, इट विल सप्लाई बैक. इट वोंट कीप इट विद इटसेल्फ. जैसे आपने एलसी ऑसिलेटर पढ़ा होगा. सो वो ऑसिलेट क्यों करता है? क्योंकि उसके पास इंडक्टर है, कैपेसिटर है, दोनों ही एनर्जी को डिसिपेट नहीं करता. सो वट एवर एनर्जी यू हैव गिवन इनिशियली विल स्टे. Only thing is कि capacitor will keep on charging discharging, similarly inductor will keep on charging discharging. सो हमारे सिस्टम में क्या है? हमारे सिस्टम में डिसिपेटिव फोर्स है नहीं.
इसका मतलब सिस्टम का एनर्जी लीक नहीं होगा। और अगर एनर्जी लीक नहीं होगा तो अगर यहाँ पे कैपेसिटर नहीं होता तो क्या होता, हमारा ये पेंडुलम L/2 लेंथ के थ्रेड से हैंग जो पेंडुलम है m मास का, वो सिंपली थीटा नॉट से जब रिलीज होता तो इधर थीटा नॉट जाता और वापस ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता। अभी भी वही होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी कहीं लीक नहीं हो रही। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ कैपेसिटर ऐड किया है जो कि एनर्जी को खाता नहीं है, देन इट विल सिंपली स्टोर एंड गिव इट बैक। जिस तरह से पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है, काइनेटिक को खुद में लेता है लेकिन फिर दे भी देता है, उसी तरह से कैपेसिटर करेगा। डन है। सो यहाँ पे ऑसिलेशन होगा। नाउ इफ देर इज चांस ऑफ ऑसिलेशन, व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट एनर्जी ऑफ सिस्टम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, then we can differentiate it with respect to time in order to see for कि जो तुम्हारा ऑसिलेशन है वो एसएचएम का इक्वेशन आ रहा है या नहीं आ रहा। डन है। सो दैट मेथड नाउ वी विल बी फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है जो हमें ध्यान देना है, दिस रॉड इज ए कंडक्टिंग रॉड, है ना, ये तुम्हारा क्या है, कंडक्टर है। एंड दिस इज मूविंग, ये तुम्हारे कैसे रीजन में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव कर रहा है। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डायग्राम। ओके। एंड वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ, क्योंकि अगर आप कोई भी छोटा सा लेंथ की बात करो, इट इज गोइंग इन दिस सर्कल, and in this circle, at this point its velocity will be in this direction, so always perpendicular to length. इस point की अगर बात करो, it is going in this circle and at this instance its velocity is in this direction, so velocity is always perpendicular to length and magnetic field is perpendicular to the plane of this rod. Okay, so EMF के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, BVL। और आपको पता है कि जब एक रॉड रोटेट करता है, जब एक रॉड रोटेट करता है देन तुम्हारा ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, सो दैट इज योर B ω L² / 2। ये कैसे आया, चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ी देर जस्ट डिराइव कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे स्मॉल लेंथ की वजह से ईएमएफ कितना जनरेट होगा, दिस फॉर्मूला वी विल बी यूजिंग। ओके, सो D विल बी इक्वल टू B इंटू V का वैल्यू क्या होगा, लेट्स से दिस इज एट ए डिस्टेंस x, so that is omega x into, let's say this has a small length dx। क्योंकि देखो इसके लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे v का वैल्यू नहीं पुट कर सकते, क्योंकि एवरी सेगमेंट का वेलोसिटी अलग अलग होगा, बिकॉज एवरी सेगमेंट इज अ डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ रोटेशन पॉइंट। ठीक है, सो हमें स्मॉल ईएमएफ निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो? सो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग दिस स्मॉल ईएमएफ। सो यू विल बी राइटिंग हियर व्हाट, कुछ मिस तो नहीं किया ना, बी ओमेगा एक्स एंड दिस, या सो बी ओमेगा को आप कॉमन ले लो, दिस इज एक्स डी एक्स एंड दिस विल चेंज फ्रॉम 0 to L, सो दिस इज B ω L² / 2। वही मैं यहाँ पे बोल रही थी। ठीक है, सो ईएमएफ जनरेटेड विल बी दिस वन। एंड अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखो, ये एक सर्किट है ना, दिस इज कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर एंड देयर इज ए कैपेसिटर। सो दिस सर्किट विल लुक समथिंग लाइक कि हमारे पास एक कैपेसिटर है और एक बैटरी है जिसका ईएमएफ तुम्हारा क्या है, B ω L² / 2। So all this EMF will drop across the capacitor, क्योंकि और कुछ है नहीं जिसके अक्रॉस तुम्हारा EMF ड्रॉप करेगा। डन है। सो इसके अक्रॉस जो तुम्हारा वोल्टेज होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी B ω L² / 2। ठीक है, इस चीज को आप दिमाग में रखना। नाउ वी विल बी राइटिंग द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और यहाँ पे देखो एक ये टास्क मैं आप लोगों के ऊपर लीव कर रही हूँ, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी डन वन क्वेश्चन ऑन मोशनल ईएमएफ। सो आई होप आप उस वीडियो के थ्रू गए हो। एंड देन आई वांट यू टू आंसर मी कि यहाँ पे जो मैंने बैटरी बनाया तो मैंने रैंडमली बना दिया, बट आपको मुझे ये बताना होगा ओ पॉजिटिव होगा या ये वाला एंड पॉजिटिव होगा। ठीक है, रॉड के क्रॉस कौन सा एंड पॉजिटिव कौन सा एंड नेगेटिव होगा, दैट यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो। सो दिस इज दिस, नाउ लेट अस राइट द एनर्जी। अब देखो यहाँ पे रॉड को मैं उसके L/2 लेंथ को मार्क कर लेती हूँ एंड लेट्स से दिस इज गोइंग लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, कोई भी टी टाइम पे लेट्स से दिस रॉड इज समवेयर हियर, यहाँ है। ठीक है, जब ये यहाँ होगा, लेट्स से आई एम टेकिंग दिस हाइट एज 0, because we need to talk about which energies, potential energy, gravitational potential energy, kinetic energy and electrostatic energy stored in the capacitor। तीन एनर्जी की बात करनी है हमें। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस हाइट हमें लेना पड़ेगा, सो मैंने इसको लिया। अब देखो ये कितने हाइट पर है, सो दिस इज L/2 राइट, लेट्स से दिस इज योर H, ये वाला।
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। सो h/l/2 will be equal to how much? This is going to be your cos theta. Let's say at this point it is making an angle theta. So that is cos theta. So h is equal to L by 2 cos theta. So this height will be equal to how much? This whole is L by 2. So L by 2 minus L by 2 cos theta. So potential energy तुम्हें कितना मिला? mg L by 2 and this is 1 minus cos theta. Sorted? Yeah. Now kinetic energy क्या होगा? Half I omega square. And this omega is not the omega of oscillation. This is rate of change of theta. Okay. So yeah. क्योंकि इसको हमने पहले भी डील किया है एंड इस पे तुम्हारा एनर्जी कितना होगा? हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वोल्टेज का स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. नाउ वी नीड टू डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और उसके लिए मुझे वोल्टेज का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, है ना. सो एक काम करती हूँ, यहाँ पे इसको पहले मैं पुट ही कर लेती हूँ. सो लेट मी टेक मोर स्पेस. सो यहाँ पे हाफ सी वी का स्क्वायर, वी कितना था तुम्हारा? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2. सो दिस इज गोइंग टू बी योर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, राइट. Right, this is what we are going to get if I'm not wrong. Yeah, this is what we are going to get. अब देखो यहाँ से 2 2 2 सबको कैंसिल कर लो. Now let us differentiate it with respect to time. So this will become mgl minus d cos theta by dt. Okay, and this will become how much? 2 omega I and d omega by dt plus this will be how much? B square c L का power 4 divided by 4 and this is your 2 omega. Am I right? Yeah. So this is 2 omega and then d omega by dt is equal to 0. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तुम्हारा? 0. अब देखो d ओमेगा बाई dt का जहां जहां टर्म है उसको एक साथ मैं लिखने वाली हूँ. सो उससे भी पहले d cos थीटा बाई dt को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है. सो माइनस एम जी एल डी कॉस थीटा बाई डी थीटा करोगे कितना आएगा तुम्हारा? दैट विल बिकम योर साइन थीटा. सो माइनस साइन थीटा, सो ये प्लस हो जाएगा. सो हियर वी आर गोइंग टू गेट साइन थीटा एंड देन डी थीटा बाई डी टी, दैट इज योर ओमेगा. Plus this is going to be how much? 2 omega I alpha plus this is equal to b square c l4 by 4 2 omega and this is alpha equal to 0. ठीक है, ओमेगा को आप हर तरफ से कैंसिल कर सकते हो, यहाँ भी है. एंड देन सिंस दिस डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा को मैं थीटा मान सकती हूँ. सो आई विल बी राइटिंग हियर 2i प्लस b स्क्वायर c. सी को स्क्वायर नहीं करना था ना, हाफ सी वी स्क्वायर, नो. सो बी स्क्वायर सी एल का पावर 4 डिवाइडेड बाई दिस इज 4, राइट. सो दिस इज 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 4 कैंसिल होगा, सो 2 इज लेफ्ट एंड देन दिस इज हाउ मच? दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस एम जी एल थीटा. ओके. अब आप इसको सॉल्व करो. सो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, पहले आई का वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा. 2 इंटू आई क्या है तुम्हारा? एम एल स्क्वायर बाई 3. सो दिस इज योर एम एल स्क्वायर बाई 3 एंड दिस विल बी बी स्क्वायर सी एल का 4 एंड दिस बाई 2. ओके, एंड दिस इज योर माइनस एम जी एल थीटा. ओके. सो देखो यहाँ से एक L को मैं कैंसिल कर रही हूँ, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ से ये L तुम्हारा चला गया. नाउ दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? आई मीन कैलकुलेशन है थोड़ा. सो कितना होगा बताओ? दैट इज गोइंग टू बी 4 ml प्लस 3. ओके, सो दिस इज 4 ml प्लस 3 b स्क्वायर सी एल क्यूब, राइट. That is what we have got, b square c l cube. Yeah, that will be 3 and this is 6, right. So minus 6 mg theta equal to minus 6 mg theta और यहाँ पे एक अल्फा था जो कि कॉमन था, यहाँ नहीं लिखा क्या मैंने? या दिस अल्फा. ओके, सो अल्फा इज इक्वल टू तुम्हें क्या मिल रहा है? देखो माइनस 6 mg डिवाइडेड बाई 4 ml प्लस 3. ओके, 3 b स्क्वायर सी एल क्यूब. ओके, सो कुछ ऐसा मिल रहा है थीटा एंड ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम दिख रहा है हमें, एंगुलर एसएचएम का. दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम ओमेगा का स्क्वायर, है ना, ऑसिलेशन का ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच? रूट अंडर 6 mg बाई 4 ml प्लस 3 b स्क्वायर एल क्यूब सी. दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? देखो
हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था, राइट द डिफ्लेक्शन एंगल थीटा ऑफ रॉड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। सो डिफ्लेक्शन एंगल पूछा जा रहा है। अब देखो इनिशियली कहाँ है वो, थीटा नॉट पर है, ठीक है। सो थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, थीटा नॉट, लेट्स से दिस इज साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो आई मीन टी इक्वल टू जीरो रख के वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फाइव, राइट। सो टी का वैल्यू जीरो रखो, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा नॉट एंड साइन फाइव। सो क्लियरली फाइव इज वॉट, पाई बाई टू। डन है। सो फाइव इज योर पाई बाई टू, कहने का मतलब थीटा इज योर थीटा नॉट कॉस ओमेगा टी, एंड ओमेगा का वैल्यू हमें मिल चुका है। सो यू नीड टू पुट दैट ओमेगा हियर एंड यू आर सॉर्टेड। ओके। सो हमें हमारे क्वेश्चन में टारगेट यही था, ओमेगा के वैल्यू को निकालना। डन है। आई होप यू एंजॉयड दिस वन। एंड लास्ट तुमसे क्या पूछा जा रहा है, इफ द कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड विथ रेजिस्टर, सो रेजिस्टर विल डिसिपेट द एनर्जी, दिस ऑसिलेशन विल डाई आउट, this will become damped oscillation। डन है। so ये oscillation die out कर जाएगा after certain time। okay, so that is what will happen। I hope it is clear, and I hope you loved it, but in case you're having any doubt anyway, you can always let me know in the comment section। thank you, take care of yourself, bye bye, and keep on solving more number of questions।